We are on the third lecture of gravitation. I'll discuss some important concepts of gravitation today. First will be gravitational field. Gravitational field. अभी बात सुनना है इधर. Gravitational field is the space around the mass where the gravitational influence is felt. Okay? आज हम लोग टोटली प्योर कॉन्सेप्ट्स करेंगे about gravitation. Suppose there is a mass m, capital M. It is setting up its own gravitational field. This is area. हमको पता है कि in this universe there are two types of forces. One is contact and second is non-contact. This comes under the category of non-contact force, which is a field force. Gravitational field, electrostatic field, magnetic field, they all will come in this category. The field is always represented by lines. So there will be lines of force which will be attractive. मतलब इधर ये बड़ा लाइन, फिर छोटा हो गया, फिर और कम हो गया. You can see I am understanding this way. It is increasing. And this way. ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है एकदम. And it is attractive. मतलब क्या, जो भी चीज ये फील्ड में आएगी ये इसको खींच लेगा. And what will be the direction? Passing through the center of the earth, center of the mass. Understand? Means if I keep a test mass here, m naught, it will be attracting it with the force Fg, and the force Fg का formula क्या रहेगा? Gmm by r square, which will be r will be the distance from m naught to the center of m. तो Fg का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? Fg का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा बड़ो g बड़ो m m naught by r square. Yes or no? And it will be attractive or repulsive? Attractive. मतलब वो उसको खींच रहा है. अच्छा, मैं बोल सकता हूं कि everywhere the r will be different, so the force will also be different. Can I say जितना ज्यादा r रहेगा उतना फोर्स कम रहेगा? That is indicated by the field. Okay? आप देख सकते हो ये जो लाइन है, this is arrow, this is small, and this arrow is big, and this arrow is very big, indicating the force over here is small, is the least, over here it is less, and over here it is more, and on the surface it will become maximum. On the surface of the mass is placed, it is maximum. आप देख सकते हो ना. अच्छा, can I say this point is a point outside the field? Outside the field को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं infinity with respect to the field. Over here, how much is the gravitational force, beta? Gravitational force will become g m m naught by infinity square will become 0. So the force at infinity due to the mass m will become 0 Newton. मतलब अगर आप आउटसाइड द फील्ड हो तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉडी लगाने वाला है आपके ऊपर? 0 न्यूटन. Getting it? Next term which I define
is gravitational intensity, Ig. Gravitational intensity is defined as the force experienced by a unit test charge, test mass placed at that point. Gravitational intensity is defined as the force experienced by a unit test mass placed at that point. What do you mean by this? Ig will become F by m naught. What is the F ka formula between m naught and m? G m naught by r square into m naught will cancel. So what is the answer coming? Gm by r square, and Gm by r square will be choto g due to the earth. This is lecture number 1. You know Gm by r square is g, na? And what is the direction of this gravitation? Inwards. It is attractive. What is the unit of this? The unit of this means is Newton per kg. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब if I keep a unit mass here or here or here, it will experience different forces at different distances. यहां पर he is experiencing suppose 2 Newton per kg, 4 Newton per kg, 6 Newton per kg, 0 Newton per kg. तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आपको क्या बता रहा है? आपको फील्ड का ताकत बता रहा है एट एवरी डिफरेंट पॉइंट. It is showing that when you place 1 kg over here, it is going to experience an inward force of 2 Newton. अगर यहां पर रखेंगे तो 4 न्यूटन, यहां पर रखेंगे तो 6 न्यूटन. अच्छा, सरफेस पर रखेंगे तो कितना वैल्यू जी का हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? 9.8 न्यूटन ऑन 1 kg. मतलब अगर ये 1 kg है, प्लीज सिट स्ट्रेट, ओके. अगर ये 1 kg है तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस 9.8 न्यूटन ऑन 1 kg. सो ऑन 2 kg 19.6. आप n से मल्टीप्लाई कर सकते हो, m से मल्टीप्लाई कर सकते हो, so you get that much newtons acting on that much mass, and that is called as gravitational intensity. Can I say if I make a graph of gravitational intensity, the gravitational intensity will follow the same graph as that of G. G का ग्राफ लास्ट टाइम कैसे था? याद है? G का ग्राफ वर्सेस R. At the center it was 0. ये and यहाँ पे G is maximum, and as you increase R the gravity value will decrease. अभी यहाँ पर G की जगह क्या लिख देंगे बेटा? Ig. So gravitational intensity is defined as the force experienced per unit mass, which is G. The unit is Newton per kg, and the graph of Ig versus R will be same as that of G, which was done last time. समझ में आई आपको बात ना? और बात करते हैं थोड़ा. ओके, इन योर स्टेट लेवल सिलेबस दिस इज नॉट देयर. पहली बात, आई एम टीचिंग यू बिकॉज दीज कंसेप्ट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, now we know that outside the field the force over here is 0. Force is 0. Can anyone tell me how much will be the potential due to gravity or gravitational potential over here? Gravitational potential. What is potential? ठीक है, हम लोग potential की बात करते हैं. What is potential defined as? हाँ, पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट से? Ability to do work. Yes, ability to do work. Gravitational potential और potential का meaning is ability to do work, capacity to do work.
You know the force is zero. If the force is zero, the capacity to do work will also be zero, so the potential will also be zero. I can say outside the field, the gravitational potential is zero. I'll explain this how it comes. Okay, and the unit will become joule per kg. पोटेंशियल का हम लोग कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले. Okay, I told you, he tells me, sir, I am not interested in studying, I want to open a tea stall. चाय का दुकान I want to open. Okay? Okay. So now you tell me the area where I can open a tea stall and get more business. Understand? So I tell him open it outside my class only. I'll send you 50 students every day. 50 into 20 rupees में also you sell, so you'll get 1000 rupees per day. बराबर, nice business ना, more than any fresher also. तो उसको पोटेंशियल मिल गया. कितना पोटेंशियल है? एक दिन में 1000 रुपया. इधर बोले नो सर, नो, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव. I'll go to KC college. I'll go to some college which has more number of students. उधर जाके okay, I'll do some setting and okay, the person will provide me 200 students per day. 200 into 20, 4000 रुपया. So potential will become more. Understand? He'll tell me no no sir, ये भी थोड़ा कम है. और ऐसे एरिया में जाएगी, ऑफिस एरिया में, वेर ओके सुबह से शाम तक लोग आते और जाते रहते. So there the number of students, the footfall will be more. So I'll get 400 students or 400 people every day. तो रोज का 8000 रुपया मिलेगा उसको. Understand what's happening? ये है. And he thinks of opening the tea stall on a highway also. हाईवे पे कोई रहता ही नहीं है, कोई रुकता भी नहीं है. उधर वो टी स्टॉल खोलेगा तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा? जीरो. इधर से आपको क्या पता चला कि यू हैव टू ओपन द टी स्टॉल इन द फील्ड, इन द मार्केट, नियर द मार्केट द पोटेंशियल विल बी मोर, अवे फ्रॉम द मार्केट द पोटेंशियल विल बी लेस, एंड जीरो पोटेंशियल विल बी देयर आउटसाइड द मार्केट. बराबर है क्या नहीं है? पोटेंशियल भी वही चीज है. मुझे क्लास खोलना है नया, ओके तो मैं कहां क्लास खोलूंगा? यहां पर सपोज ये एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 300. ओके, नाना चौक का कैपेबिलिटी इज 300 स्टूडेंट, नॉट मोर देन दैट. इफ आई ट्राई माय लेवल बेस्ट आल्सो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 300. बराबर. I'll go to other area. I'll go to Dadar area. Dadar area में number of students are 800. क्या हुआ? पोटेंशियल बढ़ गया. बोलो नहीं नहीं उधर उससे ज्यादा बताओ. I'll go to Parla area. Number of students are 1500. No. और बताओ. Okay. I'll go to Kota, where number of students are 1,50,000. कहां था 300, इधर आ गया 1,50,000. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? और मैं यहां पर किधर हाईवे पर क्लास खोलूं तो कोई आएगा क्या? कोई भी नहीं आएगा. हाउ मच इज द पोटेंशियल ओवर देयर? जीरो. पोटेंशियल इज जीरो. अच्छा एक मिनट, यहां पर हम सिर्फ सोच रहे हैं. Did he open the tea stall? No. He's just thinking. Okay, good business is it, but not. Did I open the class? No, we are just thinking. भाई इधर तो बहुत potential है, इधर तो बहुत potential है, इधर जाएंगे तो बहुत ज्यादा potential है. Potential is just like a benchmark. Setup करना है दिमाग में. एक spring है, spring. इधर ध्यान देना बेटा, एक spring है. मैं कहूं स्प्रिंग को कंप्रेस करना है इधर 3 पॉइंट पर. इधर आपको कंप्रेस करना है तो आपको लगाना है 1 जूल पर केजी, 3 जूल पर केजी, 5 जूल पर केजी,
इधर का पोटेंशियल 1, 2 एंड 3, तो पोटेंशियल एट 1 कितना है, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, 1 जूल पर केजी। इधर का पोटेंशियल कितना है, कितना मेहनत करना है इसको कंप्रेस करने में, 3। इधर कंप्रेस करना है, कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, 5 जूल पर केजी। क्या आपने इसको कंप्रेस भी कर दिया, क्या आप सोच रहे हो अब तक? यू आर जस्ट थिंकिंग, दिस इज जस्ट अ बेंचमार्क, दिस इज जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 जूल पर केजी। अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो आपको 1 जूल का मेहनत करना पड़ेगा पर केजी। 3 जूल पर केजी, 5 जूल पर केजी। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन पॉइंट। वैसे हर जगह पर यहां पर भी ऐसे ही होता है। यहां पर पोटेंशियल 0 है, ओके। पोटेंशियल अगर 0 है तो आप कितना भी काम करेंगे, वर्क डन विल बिकम 0। जितना अंदर जाना है वर्क डन भी उतना करना है, ओके। आप देख सकते हो इधर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मगर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। जैसे एक स्प्रिंग को दबाना है तो 1, 3, 5, 9, फिर क्लिप कर देंगे, so that 9 joules of energy which I gave it to the spring was always stored in the spring in the form of potential energy. पता कैसे चलेगा? When you open the clip, it will pop out with 9 joules. That means the energy was conserved over there. The spring force is a conservative force. पता है कि नहीं? ये हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग रहेगा, हर पॉइंट का। Sachin Tendulkar had lot of potential, but did he think and feel happy? No. He did lot of hard work, na? Hard work कर करके he reached that potential which he had. I tell you, you have great potential. You start smiling, or you feel happy, but you should take tension because उतना मेहनत कर रहा है आपको। He has potential of becoming a very nice engineer. तो आपको इंजीनियर बन के दिखाना है, हैप्पी। यू डोंट हैव टू फील हैप्पी, यू हैव टू टेक टेंशन। हाँ यार, मेरे में बहुत सारा पोटेंशियल है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे में पोटेंशियल रहेगा 5 जूल्स का और मैं सिर्फ काम करूंगा 1 जूल का, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? दैट एनर्जी इज समवेयर कमिंग आउट इन व्हाट्सएप, इन फेसबुक, इन दिस। ये यहां तक पहुंचे आप सिर्फ, बराबर है कि नहीं है? पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब तक काम हुआ नहीं है, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। पहले पोटेंशियल आता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बनता है। जब टेकन साइंस हुआ है, बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड दैट यू हैव पोटेंशियल ऑफ साइंस, देन यू हैव टेकन, देन यू स्टार्टेड द जर्नी एंड यू आर डूइंग वर्क एवरी डे, थोड़ा थोड़ा लेक्चर, थोड़ा थोड़ा होमवर्क, एंड दैट वर्क डन। जब आप एग्जाम देंगे, यू हैव टू इंटीग्रेट द लेक्चर्स फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, बिकॉज इट इज वेरिएबल ना, एवरीवेयर इट वाज नॉट कांस्टेंट। एक दिन ज्यादा पढ़ा लिया, ओके, एक दिन कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, कुछ दिन कोई इजी चैप्टर है, वो सबको इंटीग्रेट करना है और साथ में जोड़ना है और लास्ट दिन पे जाके एग्जाम देना है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज समझ में आया? तो सबसे पहले हमको पहचानना है पोटेंशियल एट द पॉइंट। अगर पोटेंशियल 0 है तो इधर काम करके कोई फायदा ही नहीं है। भाई इसने टी स्टॉल खोल दिया जंगल में जाके, ही इज डूइंग वर्क एवरी डे, बहुत सारा चाय बना रहा है, खुद ही पीना पड़ेगा उसको, ओके? अंडरस्टैंड? एनीवन एल्स इज देयर? नो वन। सो वर्क डन एट दिस पॉइंट will be what? 0. And work done is stored in the form of what? Potential energy, which is what? 0. So waste हो गया, इसका फायदा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसने पोटेंशियल पहचाना 0, काम भी करेगा तो 0 ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगा इधर, सब वेस्ट हो गया ना दूसरा एनर्जी। अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? वैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल पहचानना है, फिर अगर आपको चार्ज या मास को लेकर जाना है इधर,
उतना जूल्स ऑफ एनर्जी आपको करना है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? जैसे रॉकेट को लॉन्च करना है या सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो सबसे पहले वो लोग पोटेंशियल को पहचानते हैं. इधर ये ऑर्बिट का पोटेंशियल कितना, ये अर्थ है सपोज, इमेजिन करो ये स्पेस है हमारा, ये इंफिनिटी है. यहां पर मुझे एक सैटेलाइट जाके लॉन्च करना है, तो मैं बोलूंगा ये ऑर्बिट में मुझे लॉन्च करना है. इधर का पोटेंशियल इज सपोज 10, -10 आएगा, बट 10 ठीक है आपके लेवल पे अभी, ठीक है 10. हमने सबसे पहले पोटेंशियल को पहचाना, फिर हमने वो रॉकेट को क्या दिया बेटा, एनर्जी दिया, ताकि वो पोटेंशियल तक पहुंच जाए और घूमने लगे. हाउ इट इज डूइंग लॉन्चिंग एंड एवरीथिंग, नेक्स्ट लेक्चर विल कम. अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल को पहले पहचानो, बाद में काम करो, बाद में एनर्जी दो, सो दैट वर्क डन विल नॉट बी वेस्टेड, विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट गिवन पॉइंट. You understanding what's happening? I have defined potential. Potential, I told you all, is the ability to do work. उसका जो टेक्निकल टर्म है, I'll come to it later. First I'm doing gravitational potential energy का डेरिवेशन. सबसे पहले मुझे बात बताओ, मैं आपको 2 सिनेरियोस बता रहा हूं, आप मुझे बताओ डिफरेंस क्या है. ओके, ये सिनेरियो देखिए, ये डस्टर है, मैंने लिया ऐसे छोड़ दिया. ओके, फर्स्ट सिनेरियो क्या हुआ इसमें. ओके, यू कैन सी, लुक एट द सिनेरियो प्लीज. ऐसे क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है इसमें. नो, आई वांट बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज हैपनिंग, क्या एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. कहां पर, नीचे. वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, डाउन. व्हाट इज द फॉर्मूले फॉर वर्क डन, Fs cos theta. F into S is 0. It is F bar dot S bar, it is Fs cos theta, and theta is 0 because F and displacement both are in the same direction. Force भी gravity का नीचे, displacement भी gravity का नीचे. So how much is the work done? The work done is positive or negative beta? Work done is positive. तो यहां पर मैं एक सिनेरियो बताता हूं कि एक मास ऐसे गिर रहा है नीचे ऑन द अर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ऐसे लग रहा है Fg. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज Fg into S into cos 0. So work done by gravity will become Fg into S. I can say plus Fg into S. बोलो सही है, ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं मैं. अच्छा, इज दिस एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन. बहुत सही है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज नेट फोर्स इज ma ना बेटा. It is this an unbalanced force or a balanced force? Unbalanced force. And unbalanced force will cause acceleration. ये पता है ना ये सब rules. F is equal to ma. M ये है ना बेटा. ये कौन सा था, ये सिनेरियो नंबर 1 था, ये कंसेप्ट नंबर 1 था, मैंने आपको दिया, समझ में आ गया. पॉजिटिव वर्क डन होगा एंड द वर्क डन इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी देखना, मैं सेकंड सिनेरियो बता रहा हूं, सुनो मेरी बात. फर्स्ट कंसेप्ट में मैंने क्या ऐसे ही छोड़ दिया. सेकंड कंसेप्ट, फिर से देखो क्या हो रहा है, बोलो. ये मास तो नीचे ही जा रहा है ना नीचे. डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है. प्लीज पे अटेंशन. बताओ क्या डिफरेंस है. फिर से देख लो वरना. बोलो
It is non-accelerated. It is zero acceleration. Can I say it is going with constant velocity? बोलो सही है? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना है बेटा? जीरो. नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो है. देखो नेट फोर्स भी, अरे बिकॉज एक्सेलरेशन बनता ही फोर्स है एफ में. अगर ए जीरो होगा तो एफ भी कितना होना चाहिए? जीरो. अच्छा आप मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड्स. क्या ये अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड है? ये अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड है. इधर तो अनबैलेंस था. Who is providing the normal reaction? Means indirectly I am also applying an external force which is of the same magnitude of that of Fg. आपने उसको नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया, वेरी गुड. एंड n is equal to mg, वो तो सही है. मैं नाम देता हूं F एक्सटर्नल. एक्चुअली देखने से क्या लगता है कि नीचे जा रहा है, बट मेरे हाथ ने एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया. एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया मतलब नेट फोर्स को उसने कितना कर दिया? जीरो. नेट फोर्स को जीरो कर दिया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? इसके ऊपर, नीचे. बट मेरा फोर्स, मेरा हैंड कहां लगा रहा है? इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगा रहा है. दिख रहा नहीं है हमको? आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ही तो फोर्स ऊपर लगा रहा है. इस केस में भी external force by my hand is applied where? Up, which is making the acceleration zero. आपको समझ में आ रही है बात? Yes or no? Can anyone tell me what is the work done by external agent? F external S cos 180 बराबर देख सकते हो. ये ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है. सो हाउ मच इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? जल्दी बताओ. माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू एस. कैन आई से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स? पूरे चैप्टर में ग्रेविटेशनल, पूरे चैप्टर में अभी हमको वर्क डन नेगेटिव आएगा. एंड वर्क डन नेगेटिव होना, इसका मतलब वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एंड प्रोवाइडिंग जीरो एक्सेलरेशन. ये डेफिनेशंस आपको हर एनसीईआरटी फॉरेन ऑथर्स में मिलेगा. ओके, अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया? तो नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर से, वर्क डन नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऐसे खींच रहा है एक्सेलरेशन बनाने के लिए. हमने एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया तो हमने फोर्स कहां लगाया बेटा? ऊपर. And that work done due to this external force will become negative. बोलो सही है? पूरे चैप्टर में आपको नेगेटिव साइन दिखेगा. इसका मतलब समझ जाना है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. एक एप्पल लिया मैंने, ऐसे पकड़ के रखा है मैंने इसको हवा में. Who is doing the work? Who is doing the work? Both of them are doing the work. The gravity is doing positive work. बोलो ऐसे हो रहा है? वर्क डन कब बनता है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. बट फोर्स लग रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? हमारा फोर्स कहां लग रहा है? समझ में आ रही है बात? ये समझ गया आपको? उसके बाद में मैं डेरिवेशन शुरू करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना? नो. लुक, नाउ प्लीज पे अटेंशन. इधर ध्यान देना. there's a बड़ो एम मास. there's a m naught over here at a distance of r1 and I want to go m naught
at a distance of r2. सही है? Gravitational potential is defined as, gravitational potential energy is defined as the work done in taking test mass m naught from बोलो infinity to any given point. Understand what's happening? मैं यहां पर gravitational force without acceleration, बोलो करेक्ट है? वर्क डन इन टेकिंग मास फ्रॉम वेयर टू वेयर बेटा? फ्रॉम infinity to a point r against the gravitational force without acceleration. Without acceleration का कंसेप्ट अभी सिखाया. एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा which is of the same magnitude as that of gravitational force. अरे नेट फोर्स अगर आपको जीरो करना है तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स सेम होना चाहिए ना. अगर नीचे का फोर्स ज्यादा है तो वो एक्सेलरेट करेगा नीचे, अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो वो एक्सेलरेट करेगा ऊपर. अगर एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, मींस डाउन फोर्स शुड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ अप फोर्स. बोलो. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है यहां पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? gm/r². बताओ इस पॉइंट पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? gm/r1². खींचेगा. इस पॉइंट पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? m/r2². कैन आई से द फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल? द फोर्स इज वेरिएबल. यहां पे द फोर्स इज मैक्सिमम, यहां पर द फोर्स बिकम्स लेस एंड लेस एंड लेस एंड फाइनली इट बिकम्स मिनिमम. अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? फोर्स यहां पर मैक्सिमम, फोर्स यहां पर मिनिमम, फोर्स इज वेरिंग. Whenever the force is varying, you consider a small sample. एक स्प्रिंग को दबाना है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन. Is the force constant? Can I calculate work done as force into displacement? No, because force at every point is what? Different. तो मैं F का एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू तो मिलेगा नहीं. F at every point is what? Different. तो मैं क्या करूंगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूंगा एंड दैट आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. तो आपको एक छोटा सी सैंपल लेना है और वो सैंपल को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. वैसे यहां पर आई कंसीडर m नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ r. सुनो हाँ बात इधर. ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कहां पर खींच रहा है? अंदर के बाहर. ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कहां पर खींच रहा है? अंदर के बाहर? अंदर. अंदर खींचेगा और एक्सेलरेशन बनाएगा. ऐसे मुझे यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, F एक्सटर्नल, एंड इसको डिस्प्लेसमेंट देना है बाय अ डिस्टेंस ऑफ dr. कितना देना है छोटू डिस्प्लेसमेंट? dr. Are you understanding what's happening? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर खींच रहा है? इसको अंदर. अगर अंदर मैं जाने दूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो वो एक्सेलरेशन करेगा. Okay, मुझे वही फोर्स से इसको बाहर खींचना है so that the body will come out with constant velocity. That means acceleration will become equal to 0. Did you understand? How much will be the external force का formula? Come on. What will be the formula for gravitational force or external force? Both are the same magnitude. m/r². भाई जितना ये मैग्नीट्यूड का था उतना ही ये मैग्नीट्यूड का करना पड़ेगा so that net acceleration and net force will become 0 and it will move out with constant velocity. Getting it? Now I am doing some work. In taking him by a distance of dr. What is the formula for work done? Come on, work done का formula क्या है? F bar dot S bar, which is F S cos theta.
सो dw will become f की जगह क्या लिखेंगे? कम ऑन टेल मी. g m naught by r square. What is the displacement beta? dr. And what is the angle between them? Come on. cos 180. cos 180 कहाँ आएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में ना. अरे भाई f and dr सेम डायरेक्शन, मतलब become what? cos 0. So dw will become g m naught r raised to minus 2 dr. देख लो भाई ये ऊपर जाएगा. ये जो छोटा सी सैंपल है, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस सैंपल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? dw क्या हो जाएगा? m नॉट कम्स आउटसाइड, इंटीग्रेशन यहां पर और इंटीग्रेशन यहां पर, r raised to minus 2 dr from r1 to r2, and this will be from 0 to w. What is the integration dw? w m naught. What is the integration of r raised to minus 2 dr? Minus 1 by r. R raised to minus 1 upon minus 1 is what? Minus 1 by r, and the upper limit is r2 and the lower limit is r1. So work done will be written as what? Come on. माइनस साइन बाहर ले लेता हूं. GMM. Now put upper limit. Minus. Now put the lower limit in place of r. पहले आपको अपर लिमिट डालना है. माइनस साइन तो मैंने बाहर ले लिया. अपर लिमिट डालना है, फिर आपको क्या डालना है बेटा? लोअर लिमिट. सो इट विल बिकम माइनस GMM नॉट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1. दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन. अभी आपका इनडेफिनेट चल रहा रहेगा. डेफिनेट में क्या होता है? पहले पुट अपर लिमिट, देन पुट द लोअर लिमिट. दिस इज द वर्क डन in taking the test mass from R1 to R2. ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा ये. सबसे पहले वर्क डन इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है? वर्क इज डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मतलब होता है वर्क डन इज अगेंस्ट gravitational attractive force. बोलो. And who is doing the work? External agent. Minus GMM not 1 upon R2 minus 1 upon R1. 1 upon R2 मतलब it is final minus initial. It is final R minus initial R. कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं R final minus R initial. समझ में आ रही है बात? क्लियर बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात एवरीवन? ये फॉर्मूला है. दिस वर्क डन इज नेवर वेस्टेड. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हिच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. सो कैन आई राइट दिस? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड. ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. करेक्ट है? So again I am telling you it's complicated. अभी हम क्या करते हैं? कोई बता सकता है ये जो फॉर्मूला है ये रिलेटिव है क्या एब्सोल्यूट है? ये रिलेटिव है. रिलेटिव मतलब दो पॉइंट के बीच में. इसको फिर से नाम दे देते हैं R2 and R1 if you are getting confused. तो ये दो पॉइंट के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है. अगर हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो दूसरी पॉइंट को कितना दिमाग में पकड़ लेना पड़ेगा? 0. समझ में आ रही है बात? इफ आई टेल यू अ कार इज ट्रैवलिंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज? एक गाड़ी जा रही है रास्ते पर 100 की स्पीड से, तो 100 की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. वेयर इज द ऑब्जर्वर? On the earth. So over here the earth is considered to be what? At rest. मतलब we have considered the earth का velocity will become 0. क्या earth का velocity really 0 है? earth घूम रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, पूरा यूनिवर्स भी घूम रहा है, तो मगर हमने दिमाग में क्या पकड़ लिया उसको? 0. क्योंकि हमको इजी बनाना है हमारी लाइफ को. अर्थ का अगर रोटेशन रेवोल्यूशन सब पिक्चर में लेते देन यू गो मैड. आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर ये फॉर्मूला को इजी बनाना है, हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को 0 बनाना पड़ेगा.
इसलिए एक पॉइंट को इन्फिनिटी पकड़ा गया। क्या कह रहे हो? अब तक डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आया पूरा? वर्क डन हुआ, हाँ हुआ, बाय हुम? एक्सटर्नल एजेंट। इन टेकिंग हुम बेटा? टेस्ट मास। फ्रॉम वेयर टू वेयर? मगर यहां पर तो सर आपने R1 से R2 तक लेके गए, डेफिनेशन के मुताबिक इट इज इंफिनिटी टू पॉइंट R। इंफिनिटी क्यों लिया गया? इंफिनिटी इसलिए लिया गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होता है? जीरो। तो एक पॉइंट को जीरो बनाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला में R1 को उन्होंने क्या पकड़ लिया और R2 को उन्होंने क्या पकड़ लिया? R। पुट इट हियर। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? माइनस जी एम एम नॉट 1 upon R2 is R and 1 upon infinity is 0. So it will become this way. बोलो करेक्ट है? This is potential energy at a given point. This is potential energy difference between any two points. आप क्या याद रखेंगे? आप ये याद रखेंगे, potential energy at a given point is minus gmm by r. What is that minus gmm by r? What is that minus gmm by r? What is that minus gmm by r? What is that? मैं आपको एक बताऊं कि अगर एप्पल अर्थ है ये और एप्पल इधर है, ये डिस्टेंस बढ़वा आ रहा है ना, याद है ना? मैं बोलूं इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अरे बोलो, अभी सिखाया मैंने, क्या है? माइनस जी एम एम बाय बड़ो आर। मैं बोलूं एप्पल को मैं हाइट पर लेकर गया, एच हाइट पर लेकर गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। एंड डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, और यू कैन से पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना। डेरिवेशन के मुताबिक मैंने 2 माइनस 1 किया है। फिर लोग पूछते रहते सर वाई इनिशियल नॉट माइनस फाइनल, वाई फाइनल माइनस इनिशियल, ये उसका डेरिवेशन है। सीईटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे, सर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों नहीं किया? डेरिवेशन में हमने फाइनल माइनस इनिशियल डिराइव किया है इधर। समझ में आ रही है बात आपको? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट? माइनस जीएमएम बाय छोटो आर और माइनस जीएमएम बाय आर। वो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव आर? या कुछ फॉर्मूलाज हमको याद रखना है जो मैंने डिराइव किया है। डेरिवेशन आपके पोर्शन में नहीं है, डेरिवेशन कुछ काम का नहीं रहेगा, बट ये जो फॉर्मूलाज है वो बहुत काम किया। सबसे पहला डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? माइनस जीएमएम बाय आर फाइनल माइनस ऑफ माइनस जीएमएम बाय आर इनिशियल। समझ में आ रही है बात? अरे भाई अगर आप माइनस साइन लेंगे तो वो पुराना फॉर्मूला ही आएगा, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? करेंगे ना वो सब। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट? छोटो आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, इधर एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, एक एक लेटर। माइनस साइन क्यों? वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्स, जीएमएम बाय छोटो आर। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा वो mgh जो हमने स्कूल में पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, कहां से आया, क्या सिनेरियो था? ये अर्थ है, ये बड़ो आर है, ये बड़ो एम है, एप्पल इधर रखा गया। फिर एप्पल को हम क्या करते हैं? हाइट एच पर लेकर जाते हैं। आपने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस जो है इज हाउ मच? mgh। यही कहा ना आपने, डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस एंड दिस इज हाउ मच बेटा? क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट को जीरो पकड़ लिया। मगर यहां पर डेरिवेशन कुछ और ही कहता है। व्हाट वाज पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट? फॉर्मूला बोलो, बोलो जल्दी बोलो। माइनस जीएमएम बाय आर। तो मैं कहूंगा कि यहां का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज माइनस जीएमएम बाय बड़ो आर, बड़ो आर। सही है? यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? जल्दी बताओ। माइनस जीएमएम बाय
R प्लस H, और मुझे चाहिए दोनों का डिफरेंस, और मुझे चाहिए कि भाई आंसर कितना आना चाहिए mgh। मगर इधर एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि H जो है ना, H दैट इज वेरी लेस देन R। आप एप्पल को कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहाड़ पर लेकर के स्पेस में लेके जाइए वो एप्पल को, तो ये फॉर्मूला चलने वाला, ये mgh जो है वो चलेगा नहीं, फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा, फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ये मैं सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाना है। अभी फिलहाल mgh इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल हाइट्स। ये कितना किलोमीटर होता है, आर का वैल्यू, बड़ो आर का वैल्यू कितना है 6400। ये आप जाओ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 64 किलोमीटर तो चलेगा, 5-6% तक चलेगा, बाद में एरर आना शुरू होएगा। ठीक है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट थिंग। मैं शुरू करता हूं यू फाइनल। सबसे पहले अलग अलग ऑपरेशन करता है, माइनस GMM बाय R प्लस H। समझ आ रही है ना बात? देखो इधर प्लीज, मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, बोलो सही कि गलत? अरे भाई क्या है मालूम है ना, मैथ्स आता है ना सबको, R कॉमन लिया H बाय R। अच्छा, मुझे जो आंसर चाहिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ छोटो जी और बड़ो जी। आंसर इज इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ बड़ो जी। यू नो बड़ो जी टू छोटो जी, GM इज GR स्क्वायर, फर्स्ट लेक्चर याद है, भूल गए? GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर, लेक्चर नंबर 1। यहां पे GM की जगह क्या मैं GR स्क्वायर डाल सकता हूं? तो यहां पे U फाइनल क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, माइनस GR स्क्वायर M R 1 प्लस H बाय R, R कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? माइनस MGR 1 प्लस H बाय R रेस टू -1। क्या बोल रहा हूं मैं, ये नीचे 1 था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। और फिजिक्स में तो पहले 2 टर्म ही काम आता है, बिकॉज H इज वेरी स्मॉल देन R, आई हैव टॉट यू दैट बिफोर आल्सो। तो यहां पर क्या बनेगा U फाइनल, जल्दी बता दो, माइनस MGR 1 माइनस H बाय R प्लस हायर टर्म्स आर निग्लेक्टेड बिकॉज H इज वेरी स्मॉल देन R। तो आगे स्क्वायर क्यूब वो सब टर्म्स सब उड़ जाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी, अरे करो, प्लस MGH, ये मिला इक्वेशन 1, U फाइनल मिला भाई। मुझे तो डिफरेंस चाहिए ना, डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी इज MGH। अभी U इनिशियल की बात करता है, U इनिशियल कितना था बेटा, माइनस GMM बाय R। कैन आई से U इनिशियल इज माइनस GM GR स्क्वायर M R कैंसल, सो U इनिशियल कितना मिला हमको, माइनस MGR। आप मुझे बताओ डेल्टा U कैसा मिलेगा? U ये करेंगे नहीं आएगा आंसर। हाँ, U फाइनल माइनस U कंपलसरी, ये कंपलसरी, मैं माइनस कर रहा हूं ओरली यार, आ गया देखो, माइनस MGR माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा U कमिंग, MGH। इधर से आप जो स्कूल में यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो यहां से आता, देख लो कहां से निकाला मैंने, ये फॉर्मूले से, कुछ भी नहीं है, एक जगह बड़ो R, एक जगह R प्लस है, GM इज GR स्क्वायर, माइनस कर लो, बट कौन सा माइनस विद माइनस, फाइनल माइनस, इनिशियल माइनस फाइनल, आंसर इज रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? ये डेरिवेशन MGH का प्रूफ हुआ। ठीक है, ये था पूरा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब वर्क डन होता है। वर्क डन ना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही बनाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये जो कंसेप्ट बना है ना, अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कंसेप्ट बनाया गया सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से है दुनिया में? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स में नहीं चलेगा फॉर्मूला, बिकॉज दे विल बी पाथ डिपेंडेंट, दीज आर पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ये इसको पकड़ू, डस्टर को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आऊं, इस रास्ते ऐसे, या तो ऐसे लेकर आऊं,
या तो ऐसे zigzag करके लेकर आओ। तीनों केस में वर्क डन क्या होगा? सेम। वर्क डन 1 2 3 इज द सेम because it is a conservative force. It only depends on initial point and final point. It is independent of the path. क्या रास्ते के बारे में कुछ बात हो रही है? नहीं बात हो रही है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाकी का ऊपर का सब सेम सेम। देखो रास्ते की कोई बात हो रही है भाई, ये लंबा रास्ता, ये छोटा रास्ता, नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? It depends on the initial as well as final state function. It is not a path function. Got it? अच्छा, इधर से लास्ट डेफिनेशन हमको करना है, दैट इज पोटेंशियल। मैंने पोटेंशियल से शुरू किया था, मैं पोटेंशियल पर खत्म करूंगा। ये क्या है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये चीज जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आना ही मत तुम लोग। हाँ, पोटेंशियल, सुनो मेरी बात। Potential is defined as V is the work done in taking unit mass from infinity to a point R in the gravitational field against the gravitational field without अरे बोलो, एक्सेलरेशन। ये तो हमने किया है ना भाई। क्या डिफरेंस है इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में? क्या डिफरेंस है? दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या करूंगा मैं? वो फॉर्मूले से मैं बड़ो एम को सॉरी एम नॉट को उड़ा दूंगा, छोटो एम को उड़ा दूंगा, पर यूनिट मास इधर एम कर देता ना ये। अरे भाई, वर्क डन पर यूनिट मास इन टेकिंग इट फ्रॉम वेयर? इंफिनिटी टू एनी गिवन पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो बोलो। पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा? छोटा एम निकाल दो ना, माइनस जी एम बाय आर। डेल्टा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैन आई से विल बी V2 माइनस V1 या फाइनल माइनस इनिशियल? बोलो क्या हो जाएगा? माइनस जी एम, क्या लिखा है? R2 या R फाइनल, माइनस ऑफ माइनस जी एम बाय आर इनिशियल। इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा? वर्क डन अपॉन मास, मतलब यूनिट क्या रहेगा बेटा? जूल पर केजी। सर आप इतने बहुत सारे डेफिनेशन बना रहे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहला वाला समझ आया, ये वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या है ये? इसमें डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सी एक खाली एक चीज का पॉइंट है, क्लिक होना चाहिए। हाँ या भाई, ये जो चीज था वो m क्वांटिटी के लिए, ये जो चीज है वो 1 kg के लिए। 1 kg का मालूम होगा, 1 kg को इतना एनर्जी देना है तो उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल। m kg को कितना एनर्जी देना है? अरे मल्टीप्लाई कर दो m से। समझ में आ रही है बात? ये 1 का है, वो m का है। अभी वो मालूम हो, इधर चाहिए तो डिवाइड बाय m, ये मालूम हो, वो चाहिए तो मल्टीप्लाई। क्या बड़ी बात है इसमें? पीपल जनरली रिमेंबर पोटेंशियल, कि पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इतना है। तो अगर मुझे एक सैटेलाइट लेके जाना है उस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा? कैन आई मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द सैटेलाइट टू गेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन? नहीं, पता ही नहीं है हमको तो क्या कह रहे हैं। देखो मैं कहता हूं कि अगर ये अर्थ है और ये ऑर्बिट में मुझे लॉन्च करना है सैटेलाइट को, एक सैटेलाइट को मुझे ये ऑर्बिट में लॉन्च करना है। सैटेलाइट यहां पर है, इधर है ना, बराबर है, इधर पड़ा हुआ है ऐसे। मैंने फाइंड किया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर। ये मैंने निकाला। पोटेंशियल पहले फाइंड किया जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी दिया जाता है, बराबर है ना?
अभी मैं क्या करूंगा, मैं कितना वर्क डन करूंगा सैटेलाइट के ऊपर ताकि वो ऑर्बिट में चला जाए? अरे बोलो, यहां से वर्क डन कितना करूंगा मैं इसके ऊपर? -gm इंटू m बाय r। इतना वर्क डन अगर मैंने सैटेलाइट को किया, वो ये ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर घूमना चालू कर देगा। क्या कह रहा हूं मैं, कुछ समझ आया? हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम फाइंड करेंगे और उसी मास को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी मिलेगा आपको जहां पर वो मास को भेजना है आपको, सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। Got it? So potential was per unit mass, work done per unit mass, and potential energy is the total work done from initial to final or from infinity to a distance of r. ठीक है, क्लियर? ये सब फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद सैटेलाइट मोशन। ओके।